Assalamu alaikum guys, welcome back on my channel, and today we have very important discussion related to the integration, and that integration actually based on some past paper questions, but today the focus of discussion is related to the limits. Yani we will apply the concept of the limits in case of under the integration. Acha, first of all guys, you have to clear about why we use the limits in case of integration. अच्छा देखो बच्चों, whenever you need to find out the area under the curve, okay, so in that condition we have to find out, we have to apply the concept of the limits in integration. Let's take the example is here. For example, now we take example is here. We will focus later on that questions. First of all, you have to clear about the concept of the limits and how you can apply the limits. जैसे for example बच्चों ये दिया हुआ है, let's say कि now okay, ये now it is two quadrant x and y. ठीक है, यानी एक x एक्सिस गिवन है और एक y एक्सिस गिवन है, and let's say we have a curve is here. हमने कहा कि भाई ये कर्व है, and equation of this curve, let's say equation of this curve, हमने कहा कि भाई इसकी equation जो है इस कर्व की, ये गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर. ओके, ये एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, एंड मैंने यहां दो पॉइंट्स लिए. एक पॉइंट मैंने ये लिया, लेट्स से वन पॉइंट इज हियर, और एक एरिया स्पेसिफाइड कर दिया अंडर दिस कर्व. क्या किया भाई, दिस इज एन एरिया अंडर द कर्व. अच्छा, और बच्चों मैंने ये कहा कि भाई दिस इज ओरिजिन. ओके, एंड यहां मैं ये कह रहा हूं कि नाउ फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ 3 and 0 and for example 5 and 0 मैं लिख सकता हूं, एक आर्बिट्री वैल्यूज ले लिए. सो इज इट राइट, y will be 0, okay, along the x-axis, and similarly here again y you have a 0, and this is the value of one value of x and this is the another value of x. तो अब देखो ये कहलाएगी, इसको हम नाम दे रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है द एरिया अंडर द कर्व सब्जेक्ट टू दिस चेंज इन x. चेंज इन x क्या है, व्हाट, dx. किसके रिस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, dx, विद रिस्पेक्ट टू dx. तो फाइंड आउट, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके, विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालूंगा बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x dx. राइट, ये निकालना है. तो दिस वन इज योर लोअर लिमिट, and it is your upper limit. Okay, this one is your limit, lower limit, and another one is your upper limit. Okay, अब क्या करना है, simply whenever you need to find out the area under the curve. ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते थे कि भाई फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लुक एट हियर, इस तरह कोई की पिक्चर है, ये क्या कहलाती है, लाइक अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल.
तो you need to find out the area of this triangle. क्या तरीकेकार होता है भाई? Now you have the formula 1/2 length into breadth. It is the formula to find out the area of base into height. base into height. Okay, ये भी कर सकते हो, length into base into height or height into base. Clear? 1/2. Right? You can find out. अच्छा, what about, for example, and let's say कि आपके पास स्क्वायर है. What is the area of square is L square. Am I right? Yes. ठीक है, L square कर देते हैं. And what about the area? For example, you have this kind of the picture. अब देखो, ये ना ट्राइटेंगल है ना ट्राइंगल है. What about this shape? Trapezium. Trapezium. It is called trapezium. अच्छा, trapezium के अंदर क्या होता है? Two parallel sides. They are considered as A and B. ऐसे ही होता है. Yes. तो ये दो लाइन पैरेलल्स है. Now it is considered A और this one is B. And what about this one? It is your height. इसको हम क्या कहते हैं? H. And what is the formula of this one? हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है for in case of trapezium 1/2 multiplied by A plus B into H. Am I right? Yes. ठीक है. This is the formula to find out the area of trapezium. अब now you don't have any kind of concept is here. This is not a right angle. This is not a square. This is not a trapezium. तो अब now how you can find out the area? Okay? इसको क्या कह सकता हूं? Trapezium कह सकता हूं? No. I can consider as a square? No. I can consider is as a right angle triangle or equilateral triangle? No. So it means that this is not any kind of the shape which I have mentioned here. Clear? So in this condition you need to reply or you need to apply the concept of integration to find out the area with respect to the limits. Okay. अब क्या करेंगे बच्चों? इसको रब कर दूं? Okay. अब इसको रब कर दिया. क्या करना है बच्चों? You need to integrate simply y. ओके, अब इंटीग्रेट करते हैं भाई इसको. क्या करते हैं भाई? इसको इंटीग्रेट करते हैं 2x स्क्वायर dx. राइट? इंटीग्रेट करूं, क्या होगा इंटीग्रेट करने के बाद भाई? इट इज द पावर फंक्शन. Yes. ओके, तो भाई अच्छा, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है? With respect to 3 and 5. 3 over 5. It is your lower limit. Why? Rate of change with respect to x. So it will be 2x cube divided by 3 plus c. Am I right? यही होगा. अच्छा, अब c आएगा या नहीं आएगा? yes. No. What I told in previous lecture, in case of the limit, we don't have constant. Remember, recall the concept of recall previous lecture. What I pointed out you, कि in case of limits, we don't put positive c here. Okay? Without limit integration, we have a constant value of c or any constant. But in case of the limit, we don't have constant value. ठीक है? तो अब यहां पे क्या होगा बच्चों? यहां क्या होगा? 3 into 5. सही लिखा है भाई? 3 और 5. ओके, अब क्या करूंगा? अप्लाई करो. 2
ब्रैकेट 5 की पावर 3 over 3 minus the lower limit 2 into 3 की पावर 3 over 3. Okay, we can solve it. Yes, आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 की पावर 3 125. किस तरह के वापस? मैंने ऐसे किया है, इंटीग्रेट किया, ये सही है. एंड नाउ कीप इज हियर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द अपर लिमिट इज हियर. क्या हुई अपर लिमिट? x की वैल्यू 5. टेक द क्यूब ऑफ 5, क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय 3. ये 3 आ गया, माइनस द लोअर लिमिट. अपर लिमिट, substitute the upper limit and then subtract lower limit. Clear? तो मैंने क्या किया? Substitute किया upper limit को after calculating the integration or after applying the integration and then take the difference between lower and upper limit answers. Clear बिल्कुल? तो ये मैंने कर लिया. तो अब क्या आएगा आंसर मेरा बच्चों? क्लियर है? क्या किया बताओ जल्दी. यस, क्या किया है? इंटीग्रेट किया, देन अप्लाई द लिमिट, पुट द अपर लिमिट, देन माइनस, पुट द लोअर लिमिट एंड कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द डिफरेंस. अब कैलकुलेट करो भाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाय 125 ओवर 3. क्लियर? यस, माइनस, अच्छा इसको तो यूं कर दूं ना, 1 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 का स्क्वायर इंटू 9. तो अब मुझे निकाल लो. नाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस वन एंड सॉल्व दिस वन. ठीक है, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 125 बाय 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 9 जा 18 और 18 क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो यू कैन डू योरसेल्फ दिस. ओके, राइट, क्लियर बिल्कुल. अच्छा, अब आ जाओ टुवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. Okay, are you ready to solve the past paper question? Yes? Yes. Okay, good. So now rub it. Erase this and then start the past paper question. Okay, look at this past paper question, bachcho. Yeah, paper November 2001, paper 1 and question 11 part 3 and it is around 6 marks question. Yeah, क्या given है मुझे बताओ. एक कर्व दिया हुआ है. What about the curve equation is y equal to square root 8x plus 1. ये किसकी इक्वेशन दी हुई है? कर्व की. And that curve is tangent at the point P. किस पे नजर आ रहा है? पॉइंट P के ऊपर. एक लाइन के साथ क्या है? टेंजेंट है. अच्छा मुझे पता है, ये बताओ टेंजेंट का क्या होता है? जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इस कर्व का स्लोप होगा. ऐसा ही होता है. When a line tangents to the curve, तो slope will be equal to each other. The slope of the curve at that particular point will be the slope of tangent. Clear? यही होगा, दोनों के बराबर होगा. अच्छा, अब जब ये दोनों के बराबर होगा, सेकंड तुम्हें निकालना क्या है? ये कह रहा है कि भाई द डायग्राम शोज द कर्व y इक्वल टू दिस वन एंड द टेंजेंट एट अ पॉइंट 3,5. इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है. द टेंजेंट मीट्स द y एक्सिस एट a पे मीट हो रही है. y एक्सिस को किस पे मीट हो रही है? a पे मीट हो रही है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. हमें इसका एरिया निकालना है बस. क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट जस्ट थिंक अबाउट एंड बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे क्विकली एंड डोंट वरी. अच्छा भाई बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर मैं ये करूं, इस लाइन को डिफरेंशिएट करूं. क्लियर? क्या करूं? डिफरेंशिएट करूं. ओके, और ये पॉइंट पुट कर दूं तो क्या निकलेगा मेरा? dy by dx. dy by dx. और वो किसका स्लोप होगा? टेंजेंट.
टेंजेंट का किस पॉइंट के ऊपर, 3,5 और ये स्ट्रेट लाइन है तो ओवरऑल उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। अब वो बता रहा हूं क्यों, रुक जाओ एक मिनट। पहला स्टेप तो हम ये करेंगे। नाउ द सेकंड स्टेप इज दैट कि भाई मैं ये कर लेता हूं कि मेरे पास ये स्लोप आ जाएगा। when you have a slope of a line, okay, and you have a point, so you can find out the equation of the line. यस। क्या करोगे, y इक्वल टू y minus y1 m into x equal to m bracket x minus x1 x1। क्या होगा y1 y x1, 3 3 and 5। what will be the slope is dy over dx। how you will find out the slope, differentiation of this line। okay, you got my point। ठीक है, क्या किया, रिपीट, यस, क्विकली रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग, टू फाइंड द dy स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, कैसे पता चलेगा, बिकॉज देखो मैं आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, इट इज अ कर्व एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो व्हाई वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इक्वेशन, टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। gradient of the tangents, why, because it is tangent at a particular point along this curve। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर है, 3,5 3,5 के ऊपर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, when we apply a यानी when we apply the differentiation and find out the dy over dx, तो that dy over dx क्या होगा, इस कर्व का स्लोप होगा। यस। पूरे कर्व, इस कर्व का एक इक्वेशन ऑफ द स्लोप आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द स्लोप आ जाएगी। अब अगर मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगा, क्लियर, तो इसका मतलब है वो किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अगर मैं पुट नहीं करूंगा तो दैट dy over dx विल नॉट इंश्योर टू रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो एक dy over dx क्या होगा, इसका एक कर्व आ जाएगा, इस कर्व का एक स्लोप आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पॉइंट। क्योंकि क्या होगा भाई, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा। अगर इधर के पॉइंट पुट करता हूं तो वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, वो इस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कब, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3, y। यू गॉट माय पॉइंट, ओके, गुड, गुड की रिपोर्ट है, आगे मूव करें, ओके की रिपोर्ट है, देन यस मूव फॉरवर्ड। ओके, आ जाओ बच्चों, अब हम करते हैं नाउ द फर्स्ट स्टेप, जस्ट डिफरेंशिएट करो भाई बच्चों। नाउ सॉल्यूशन, स्टार्ट सॉल्यूशन, यहां से कर लेते हैं भाई, ताकि हमारे पास, नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर, या फाइंड dy over dx। या क्या हुआ बच्चों, dy over dx, सॉरी, यस, dy over dx इज व्हाट, करो भाई बच्चों, हमने किया, इट इज 1/2, क्लियर, 8x plus 1 1/2 minus 1 into multiply by the differential। what is the differential of 8? सही हो गया, ओके। now you can cancel out with 2, 2 1 the 2, 2 4 the 8, okay, what you have, so now the dy over dx is, yes, dy over dx is, yeah, I can write this one 4 over square root, yeah, सही है बच्चों, why, you will have the -1/2, -1/2 को नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, क्लियर है बिल्कुल, ओके, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यू गॉट माय पॉइंट, डायरेक्टली मैंने मूव कर दिया, ओके। अच्छा अब क्या करूं, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3 and 5,
put point 3, 5. तो क्या होगा बच्चों, dy over dx, x की वैल्यू पुट करूंगा. Now the substitute the value of x. Yes, 8 multiplied by 3 plus 1. Yeah, you got the answer. Yes, find out the answer. 4/5. 4 over 8 3s are 24. 24 divided by this one. So now it is 4 over 5. Okay, this is dy over dx. Now the slope of tangent. Okay, slope of Tangent. tangent. Yeah, this is the slope of tangent. Okay, now find out points. Okay, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भाई, इक्वेशन निकाल देते हैं. फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. ओके, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. We यही कहा था. already have it. हाउ, dy by dx, equation of tangent. equation of tangent is at particular point y minus, it is the slope. So it is equation. No, it is not the equation dy over dx. It is the slope of this tangent at that particular point. It is not the equation. Clear? So now to find out the equation, okay, equation of tangent. क्या करोगे बच्चों? Yes, क्या करूं? y minus y1 equal to m bracket x minus x1. So y minus y1 into equal to m x minus x1. Yes, do fast, quickly. y minus, yes, क्या हो गया बच्चों? 5. 5 equal to 4 over 5 x minus 3. Yeah, find out the answer quickly. ये कर सकता हूं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करता हूं. y minus 5 equal to, yes, what about this one, 4 upon 5x minus 3 for the 12 upon 5. You got my point? Clear? So now the y equal to 4 over 5x and minus 12 over 5 into minus 5. So now the y equal to 4 over 5x minus, take the LCM, it is 25, 25, 12. So what? 25 and 12. Yes, 5 5s are 25 and 12. 25 plus 12. Yes, 37. Clear? So now it is 37 over 5. Clear? So 37 over 5. Yeah. What about this one? 37 over 5 यही आ रहा है. Yes. चेक कर लें और एक दफा. y की वैल्यू 5. ओके, 4 upon 5x. ओके, 4 3s are 12 over 5 माइनस का. क्लियर? एंड दिस इज द 5. 5 को उधर लेकर आए तो 5 5s are 25, 25, 12, 37, 37 over 5. इट इज योर इक्वेशन. क्लियर? आपके पास ये क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर? अच्छा, अब अगर हमारे पास आगे हम करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास हो जाती है, लेट्स से कि भाई 13 5 minus x is just okay. Okay, now look at this one, 12 over 5. Is it okay?
क्लियर है? इज देयर एनी मिस्टेक? नो। ओके, तो अब आगे मूव करते हैं। तो व्हाट अबाउट यू? कि अब हमने कहा कि भाई एंड दिस इज, मैं एक दफा और चेक कर लूं। लुक एट दिस, 5 equal to this one, and equation, and this value of y1 is 5, x1 is 3, 5 over 3, 12, 4 3s are 12 upon 5, and this one is minus 5, and finally 5 5s are 25, 25, yeah, 5 5s are 25, 25 minus 37 over 5. Okay, yes. Now find out the coordinate of A. कैसे निकालूंगा? इक्वेशन में पुट करिए। इक्वेशन में पुट कर, तो ये क्या होगा कि भाई A ये निकाल सकता हूं, दिस इज पॉइंट A, क्या आ जाएगा बच्चों? X is 0, यस। ठीक है, तो now when the X is 0, it is minus 35. I think there is some mistake because it should be positive x plus 5. अब देखो, one mistake is here beta. What is the mistake? It is minus 5 and it will be positive. यही मैं पॉइंट आउट कराना चाह रहा था। देखो minus 5 है, क्यों मैंने फाइंड आउट किया, कैसे किया? मेरा y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा था, नाउ यू डोंट हैव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट, तो दैट्स व्हाई आई पिक हियर कि नाउ देयर इज सम मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई? 5 को इसको उधर मूव किया तो इट शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब नाउ चेंज दिस वैल्यू, क्या होगा बच्चों? 5 5 is 25, 25 minus 12, यही होगा, ऐसे ही होगा ना? यस। तो क्या आएगा? प्लस का 13 over 5. You got my point? Clear? अब क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ रहा है बच्चों? 0,13/5। कोऑर्डिनेट ऑफ ए x0, तो क्या हो जाएगा? 13/5। 13/5. It is 2.6. Calculate yourself. 13 divided by 5. It is 2.6. Clear? So can I write here? Okay, 2 point, yes, okay. Now it is very long story, okay, तो please सुकून से बैठो, because don't worry कि how you can solve these questions. Now it is very long story because it is very technical question ना, ये कर लोगे, एक आध दो और टेक्निकल क्वेश्चंस करवा दोगे तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द एरिया इंटीग्रेशन रिलेटेड टू द एरिया एंड द लिमिट्स क्वेश्चन ना, डोंट वरी, ओके। या अब नाउ टेल मी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। इंटीग्रेटिंग dy by अब dx। आप देखो, अब क्या करना है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया भाई, ये अगर लेट्स से मैं एक तो इसको इंटीग्रेट करता हूं, ओके, इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा ना? यस। इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं तो विच एरिया यू विल फाइंड? दिस एरिया अंडर द कर्व। बट तुम्हें तो ये नहीं चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और एक एरिया अंडर द टेंजेंट निकाल लेंगे, ओके, क्लियर। अब एरिया अंडर द टेंजेंट क्या होगा? ये वाली वाली होगी पूरा, yes. उसमें से ये इंटीग्रेशन वाला एरिया क्या कर दूंगा? सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो व्हाट एरिया यू विल हैव? एरिया शेडेड एरिया। एरिया शेडेड एरिया, ओके। यू गॉट माय पॉइंट, क्लियर। तो भाई हम एक काम करते हैं,
एरिया ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले बच्चों, क्लियर, फिर उसको बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अच्छा अब एरिया ऑफ टेंजेंट क्या बन रहा है मेरा, जरा गौर से देखो जरा, एरिया अंडर द टेंजेंट। ओके, लुक एट दिस वन, भाई ये मेरी टेंजेंट है, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। यस ओके, ये पूरा एरिया बन रहा है, यस एरिया अंडर द टेंजेंट टेंजेंट, ये बन रहा है पूरा। ओके, यू गॉट माय पॉइंट, यस ये पूरा एरिया रहा है। तो व्हाट अबाउट दिस वन, इज इट स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड rectangle? What about this one? Look at this picture, this, it is kind of the trapezium. Okay, what about the two parallel lines? These are two parallel lines. यस Oh, how it is this one or it is this one? These are not the parallel line. Which one are the parallel lines? These are two parallel lines. Okay, so it is A and this one is B. You got my point? Okay, so now it is A and this one is B. What about the height? H. This one is H. यस Okay, so this is your H, right? So it is area under the कर्व tangent, टेंजेंट that is equals to area of what? Yes, ट्रेपेजियम trapezium. कैसा हुआ आसानी से, क्लियर? निकालो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जस्ट गिव मी आंसर। तो अब एरिया ऑफ, इसको क्या लिख रहा हूं भाई, एरिया ऑफ टेंजेंट, एटी। ओके, एरिया ऑफ टेंजेंट ये लिख दिया मैंने बच्चों, एटी। क्लियर? क्या है भाई, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, इट इज इक्वल टू 1/2 a plus b multiplied by h. Yeah, so 1/2. Yes, what about the a? A is 2.6. Okay, a is, look at this, a is 2.6. What about the b बच्चों? b is 5. Okay, a is 2.6 plus b is 5. And what about the h? H is what? What about this distance? Because it is 2.6. This is okay 5 and H is 3. You got my point? Clear? Okay, look at this one. Okay? तो आंसर तो बता दो बच्चों, क्या आ रहा है भाई, इतना तो कर लो यार। यस, क्विकली क्या हो रहा है भाई, 2.6 प्लस 5 एंड yes multiply by 3, okay, divided by 2, yeah, it is 11.4। क्या आ गया बच्चों, 11.4 11.4। ओके, अब क्या करना है भाई, क्विकली बताते जाओ, पूरे स्टेप बता दिए मैंने। यस, व्हाट यू नीड टू डू इट, क्या करना है अब, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो क्या, कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व व्हेन वी इंटीग्रेट। ठीक है, क्लियर? अब हमारे पास क्या एरिया आ जाएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, व्हेन वी इंटीग्रेट तो यू विल हैव दिस एरिया। यू गॉट माय पॉइंट? तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओके, ये एरिया आ जाएगा भाई, ये एरिया तुम्हें चाहिए। अब ये कौन सा एरिया, ये एरिया तो अभी निकाला है ये तो, नहीं, मैंने अभी पूरा ये निकाला था, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये पूरा एरिया निकाला था। दैट इज काइंड ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, अब एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं। ओके, तो क्या करूंगा फिर, क्या कहा था,
टेक द डिफरेंस. ओके, तो क्या करूं बच्चों, एरिया ऑफ अंडर द कर्व इस तरह लिख सकता हूं भाई, एरिया अंडर द कर्व. क्या करूंगा बच्चों, किसको इंटीग्रेट कर दूं भाई, इस कंपोजिट फंक्शन को किस तरह लिखूं भाई, ओके, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स क्या होंगी क्विकली, इसके डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे ना. डिफरेंशियल को तो करोगे, लिमिट क्या होगी इसकी, ये तो जीरो है, जीरो से कहां तक जा रही है, एक्स एक्सेस टूवर्ड्स द एक्स, कहां तक जा रही है, 3. गुड. ओके, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0 and 3. What about this one, 8x plus 1 over 1 over 2 dx. ओके, कर दूं भाई, यस. चलो भाई कर देते हैं इंटीग्रेट. तो क्या होगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 8x plus 1, ओके, ये हो जाएगा 3 over 2 upon 3 upon 2 multiply by 8 and now the limits is 0 3. सही लिखा है भाई बच्चों, देखो यस. बिल्कुल ओके. जी. लिमिट अप्लाई कर सकते हो, पहले कौन सी वैल्यू पुट करोगे लिमिट की, अपर लिमिट 3, देन माइनस, फिर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट्स. ओके, यस, स्टार्ट. डायरेक्टली करें भाई. अब यहां पे लिख रहा है भाई बच्चों, जरा मुझे ये सॉल्व करके बता दो भाई. ये आ जाएगा 3 plus 1 की पावर 3 over 2. अच्छा, अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ओके, तो नीचे तो 3 हो जाएगा खाली, ऐसे ही है. तो 4 कहाँ आएगा, ओ 3 4 जा, ओके 12, सॉरी 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 सॉरी, 3 4 जा 12, राइट. एंड माइनस, अब माइनस पुट कर रहा हूं, क्लियर. तो माइनस में क्या करना है भाई, 0. तो नाउ द into 8 bracket 0 plus 1 power 3 over 2 divided by 12. yes, आंसर निकालो बच्चों, क्या आ रहा है क्विकली, मैं यहाँ आंसर बता दो मुझे. यस, तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो 25 का क्यूब एंड देन स्क्वायर रूट, ऐसे ही है. 25 की पावर 3, ओके, 25 पावर 3 and 12625, ओके, 25 पावर 3, ओके, तो 12652 एंड का स्क्वायर लेना है. ट्वेंटी फाइव की पावर 3, यार 25 की पावर 3 लिखो जरा बच्चों, मुझे बताना, मैं लिख पा रहा हूँ. 25 की पावर 3 लिखो, 15625, रफ में लिख लो 15625, ओके, ये आ गया. और 15625 में 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 15625, सॉरी 626 ना, 15626, क्लियर. इसका क्या करें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो इसमें ऐड क्यों करेंगे, 1 ऐड हो रहा है ना, तो वो तो ऑलरेडी कर लिया 25 का स्क्वायर, क्यों नहीं 8 3 जा 24 प्लस 1 अच्छा 25. 25 का स्क्वायर, ओके सॉरी हम कर चुके हैं. तो 25, तो अब 25 क्या आ रहा है, 625 15625 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं, 15625 स्क्वायर रूट 125 आ रहा है. ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है 125. 125 को 12 से डिवाइड किया
तो ये आ रहा है 10.41. ओके, इट इज 10.41 minus 1/12. minus 1/12. 1 divided by 12, ठीक है, 0.083. 0.083. 0.083. ओके, तो अब क्या 10.41 minus 0.083. yes, 10.327. ओके, 10.32. अब क्या करना है बच्चों? एरिया ऑफ द शेडेड एरिया क्या करूंगा? 10.32. Now, oh no, it is area under the curve. You need to find out this area. क्या करोगे? Difference. Okay, अब यहां लिख दूं. Area of shaded क्या है? Area of tangent minus area of curve. बता दो बच्चों मेरे पास भाई. 11.4. ओके, माइनस 10.32. यस, वन पॉइंट जीरो थ्री 1.073. Correct. ओके, Yes. you got my point? Yes. Sit here. What we did? Yes. Explain. First of all, we calculate the differential of the curve Why? to find out the gradient of the tangent. Okay. Then we form the equation of the tangent. How? Y minus y1 equals to m into x minus x1. With, Using the gradient of the tangent, that Nahi. was dy by dx, okay. and the points 3, 5 वो put किया, find out the slope of the equation to find out the slope of the equation. and then find the equation of tangent. Tangent. Y minus y1 y1 m equal to m equal what will be the value of m? क्या था हमारे पास m की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी? 4/5. 4/5. Five. Or what will be the value of y1 and x1? 3 क्या and थी? 5. 3 and 5. वो सेटिस्फाई कर रहे थे. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई. ओके, अच्छा, why you need to find out the equation of the tangent? To calculate the points of A. A निकाल लिया. क्लियर? अच्छा, A निकाल लिया. And then what? We consider this trapezium to find out the area under the tangent. वो निकाल लिया. किसके थ्रू निकाला? फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है, ए और बी क्या होती है? Parallel sides. टू पैरेलल साइड्स होती है. व्हाट अबाउट द अल्टरनेट ऑफ दिस वन इज एच. ठीक है, टू पैरेलल साइड का अल्टरनेट क्या होता है? एच होता है. क्लियर? तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस होता है. ओके, तो एच विल बी द 3, Yes. A will be the 2.6, Yes. or B will be the 5. Find out the area of trapezium. Area under the tangent through the formula of the trapezium. अच्छा, फिर क्या किया? Yes. We find out the area under the curve How? by taking in the integration of dy by dx With limits. with limits. Limits क्या थी? 0 and 3. 0 and 3. Clear? 0 will be the lower limit and 3 will be the upper limits. आ गया. अब ये एरिया अंडर द कर्व आ गया. उसके बाद क्या किया? Subtract the two areas to find the area of the shaded region. Shaded region. किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? Area of the tangent Minus area of curve. You got my point? That was from my side. Is there any confusion? No. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz.